किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे बीज बैंक पे और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे सीधी बिजाई वाली दान में खरपतवार नियंत्रण किस तरह और जानकारी लेंगे प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद बनाने की विधि पर और इसके अलावा और भी जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक अंतराल के बाद। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth,
one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम्। और भाइयों, अब करें चर्चा सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण किस तरह करें। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि धान अपने हरियाणा प्रदेश की खरीफ की सबसे मुख्य अनाज वाली फसल है और अपने प्रदेश में धान जो है मुख्य रूप से रोपाई विधि तय जो है लगाई जावा है और रोपाई करण में हमने मजदूरा की भी जरूरत पड़े है और साथ में यो भाइयों काम बड़ा मुश्किल भी है और इसके साथ साथ भाइयों जो धान की हम रोपाई कर रहे हैं उसमें पानी की खपत भी बहुत ज़्यादा हुआ है और इसके अलावा भाइयों जो रोपित धान है उसमें पानी की खपत तो है ज़्यादा, लेकिन साथ साथ भाइयों जो रोपाई तो पहला खेत में हमने जो कद्दू करना पड़ा है उसमें भी ज़्यादा पानी की हमने ज़रूरत पड़े है और खेत में भाइयों पानी भरा रखना है उस खातर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़े है और रोपाई खातर भाइयों जो प्योर तैयार करनी है उस खातर भी नर्सरी में पानी की हमने खपत ज़्यादा करनी पड़े है। तो एक तो पानी की खपत बहुत ज़्यादा है, साथ में भाइयों जो मजदूर हैं श्रमिक हैं उनकी कमी और बढ़ती हुई मजदूरी, उस तरह जो रोपाई की लागत है वह बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग रही है और भाइयों जो रोपित धान है उसमें पानी की हमने लगातार जो पूर्ति करनी है, पानी देना है और ट्यूबवेल तम देवा है जिससे न केवल हमारा जो सिंचाई का खर्चा है वो भी बढ़ा है और साथ के साथ जो ज़मीन के जो भूमिगत जल है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो भी बड़ी तेज़ी से घटने लग रहा है। इसलिए भाइयों प्रदेश में लगातार जो घटता हुआ भूजल स्रोत है उसके भी कारण जो है रोपित धान उगाना बड़ा मुश्किल होता जाने लग रहा है। पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, मजदूरी ज़्यादा है, मजदूर नहीं मिलते इस टाइम पे और खर्चे ज़्यादा हैं भाइयों। तो इसका जो बढ़िया विकल्प है वो है सीधी बिजाई करना धान की और इन सब कारणों को ध्यान में रख के भाइयों रोपाई के साथ जो है रोपाई के स्थान पर अगर हम सीधी बुआई करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और धान की जो सीधी बिजाई है वो रोपाई विधि तय ज़्यादा बढ़िया विकल्प है क्योंकि सीधी बिजाई में ना केवल रोपाई में लगने वाली जो मजदूरी है वह तो बचा है भाइयों, साथ में जो पानी की खपत है वो भी बहुत कम हो जाए क्योंकि सीधी बिजाई में ना तो कद्दू करना पड़ता ना ही हमने नर्सरी बनाने की जरूरत पड़ती। हम पुराने समय तो जो है बासमती धान लेने लग रहे हैं और बासमती धान खातर भाई अगर सीधी बिजाई की जो सिफारिश है वो भी सरकार कई साल तक करने लग रही है क्योंकि अपने देश में जो है सबसे अधिक जो है बासमती धान अपने हरियाणा में पैदा हुआ है और इसके निर्यात तय जो है हमने विदेशी मुद्रा भी मिला है और यही कारण है कि भाइयों प्रदेश में जो बासमती धान है उसकी सीधी बिजाई अगर हम करेंगे तो हम ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। लेकिन भाइयों धान की जो सीधी बिजाई है उसकी सफलता खातर भाइयों उसमें खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीधी बिजाई में सबसे बड़ी समस्या बस एक है, वो है खरपतवार। तो अगर हम खरपतवार नियंत्रण कर पाए तो हम सीधी बिजाई में जो है जो हम रोपाई वाली विधि धान की फसल ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम लाभ ले पाएंगे, ज़्यादा हम धन अर्जित कर पाएंगे। और भाइयों इसलिए क्योंकि जो रोपित धान है उसमें कद्दू करने खातर भी पानी की जरूरत पड़े है, पानी खड़ा भी रखना है और ऐसा कारण में भाइयों खरपतवार उसमें कम उगा है। लेकिन जो सीधी बिजाई कर रहे हैं उसमें खरपतवार के जो पौधे हैं वो एक जगह जमने और उगने शुरू हो जाए जिससे खरपतवार के पौधों को बढ़ने का बढ़िया मौका मिल जाए है सीधी बिजाई में। इसलिए भाइयों समय रहते जो है सीधी बिजाई करके धान की जो अगर हम अधिक उपज लेना चाह रहे हैं तो जरूरी है कि हम खरपतवार का समय पर नियंत्रण जरूर करें। और यदि भाइयों खरपतवार का नियंत्रण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो सीधी बिजाई वाली जो फसल है उसमें भी जो रोपित फसल है उसकी अपेक्षा जो है हम ज़्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे और उत्पादन में भी बहुत बड़ी कमी हमें देखने में मिलेगी। इसलिए भाइयों सीधी बिजाई वाली जो धान है उसमें खरपतवार नियंत्रण बहुत हमने सावधानी तक करना है और इस खातर ना केवल भाइयों खरपतवार नाशक का हमने प्रयोग करना है बल्कि उनका सही ढंग से हमने इस्तेमाल भी करना है क्योंकि जो दूसरे उपाय हैं वो भी हमने अपनाने पड़ेंगे। और साथ में भाइयों इसमें जो खरपतवार का नियंत्रण करना हमने सुनिश्चित करना पड़ेगा क्योंकि खरपतवार ही सबसे बड़ी समस्या है सीधी बुआई में। तो सीधी बुआई वाली जो धान है उसमें मुख्य रूप से जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार जिस तरह की सामक है, मोथा है या फिर डिल्ला है, लेप्टोक्लोवा है, मकड़ा है और जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जिस तरह की सांठी है, कैमोलिना है, ये ज़्यादा हमने परेशान करे हैं। और इन खरपतवारों की रोकथाम खातर भाइयों हम कई तरह के उपाय अपना सकते हैं जिस तरह एक तो है शाकनाशक द्वारा नियंत्रण करना क्योंकि अपने हरियाणा प्रदेश में धान की सीधी बिजाई के दो विधि की जो है ज़्यादातर सिफारिश करी जावा है, एक तो बत्तर अवस्था में बिजाई और दूसरी है सूखी अवस्था में बिजाई। तो दोनों तरीक़ा में जो हम बिजाई करे हैं उसमें शाकनाशक का प्रयोग 2 बार, एक तो पहला हम जमाव था पहला और दूसरा जमाव के बाद करना जरूरी बताओ है। और बत्तर अवस्था में भाइयों अगर फसल बीजी गई है तो उसमें पेंडीमेथिलीन जिसका नाम स्टाम्प
30 इसी ताकत की दवाई ने ये हमने लेनी है 1.3 लीटर, और 1 एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में हमने मिलाकर बिजाई के तुरंत बाद इसका हमने छिड़काव करना है। लेकिन अगर हम सूखी अवस्था में बिजाई कर रहे हैं तो उसमें हमने ऑक्सोडाइलीज जो कि टॉप स्टार 80% घुलनशील पाउडर का 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हमने 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 1 से 3 दिन के बाद इसका हमने छिड़काव करना है। यानी कि जो हम बिल्कुल सूखी अवस्था में बिजाई कर रहे हैं तो उसमें हमने ऑक्साडाइलीज 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 1 से 3 दिन के बाद इसका हमने छिड़काव करना है। और इसके बाद भाइयों इनकी जमाव के बाद दोनों प्रकार की बिजाई में हमने बिस्पायरी बैग सोडियम, जिसका नाम भाइयों नॉमिनी गोल्ड या तारक 10% SP के नाम से भी जाना है, 100 लीटर प्रति एकड़ की दर से हमने 120 लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाना है और बिजाई के 15 से 25 दिन के बाद छिड़काव हमने करना है। और इन खरपतवार नाशकों का भाइयों प्रयोग करने के बावजूद अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और जो मोथा आदि है अगर वो फिर भी दिखाई देवे तो इथोक्सी सल्फ्यूरान 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर मेट सल्फ्यूरान और साथ में उसमें मिला लेना हमने क्लोरीम्यूरान 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या फिर 2,4-D 38 इसी ताकत की दवाई 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर हमने बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद इसका छिड़काव करना है। ये तो अब रसायन विधि हम खरपतवार नियंत्रण किस तरह करें, साथ में निराई गुड़ाई भी करना जरूरी है क्योंकि सीधी बिजाई वाली जो धान है उसमें बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद धान की जो है निराई यंत्र है, जिस तरह पैडी वीडर है या जो हाथ द्वारा भी हम निराई गुड़ाई कर सके हैं और इससे भी हम जो है खरपतवार नाश जो है खरपतवार पर नियंत्रण पा सके हैं। इसके अलावा भाइयों स्टेल बेड तकनीक, इस तकनीक तभी बिजाई के कुछ दिन के बाद बिजाई तक कुछ दिन जो है पहला खेत में पानी लगाकर या फिर जो बारिश हो उससे जो है खरपतवारों का जो जमाव है वो उसको हम इसमें प्रेरित करें हैं और फिर उगे हुए जो खरपतवार हैं उन छोटी अवस्था में जो है जुताई करके या फिर जो खरपतवार नाशक उसमें छिड़काव करके इन्हें नष्ट कर सके हैं। और ऐसा करके भाइयों ना केवल फसल बिजाई के बाद खरपतवार कम होंगे बल्कि जो पिछले साल के जो धान के गिरे हुए जो बीज हैं उससे उगे हुए जो खरपतवार हैं या हमको जो खरपतवारी धान है उसका भी समाधान हो जाएगा। और जो कुछ और दूसरे उपाय हैं जिस तरह की गर्मी के दिनों में खेत की जुताई करके अगर हम धूप लगा दें तो उससे भी जो मोथा है और जो दूसरे खरपतवार हैं उनकी जो गांठ है वो सूख जाएंगी और उससे भी खरपतवार नियंत्रण हम कर सके हैं। और साथ में फसल की अगर हम उचित ढंग से बिजाई करें यानी कि सही उचित मात्रा में बीज लेवें, बीज की हम गहराई और बीज की में जो नमी है उसका भी अगर हम ध्यान रखें तो भी खरपतवार पर हम नियंत्रण काफ़ी हद तक पा सके हैं। बस एक बात का जरूर ध्यान रखना है किसान भाइयों ने कि खरपतवार नाशक का छिड़काव करने के लिए जो है फ्लैट फैन नोजल का हमने प्रयोग करना है और खरपतवार नाशकों का प्रयोग सही समय पर और सही मात्रा में हमने करना है। और अगर एक दिन की भी हम देरी कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा खरपतवार नियंत्रण में। तो खरपतवार जो है सीधी बिजाई में सबसे बड़ी मुसीबत है धान की फसल में और इसी पर हमने नियंत्रण पाना है। एक एक दिन जो है इसमें हमने संभल कर चलना होगा। तो यह तो भाइयों करी चर्चा आज की नसीहत के तहत सीधी बिजाई वाली धान में खरपतवार नियंत्रण किस तरह करें। और भाइयों जो हम फसल ले रहे हैं फसल में मौसम का बहुत बड़ा योगदान है, तो एक बार मौसम की भी जानकारी लें कि मौसम किस तरह करवट बदल रहा है और मौसम से संबंधित जो कृषि सलाह है उसके बारे में। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 81% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 18 जुलाई तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के साथ अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ
साथ ही किसान भाइयों 18 जुलाई तक जिले में अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने और अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए फसलों का, सब्जियों का और पशुओं का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। और भाइयों, अब चर्चा करें कल के कृषि कार्यक्रम की। तो कल है दिन रविवार और दिन रविवार न हम लेकर आओ कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत, और दिन सोमवार न भाइयों कार्यक्रम किसान वाणी में चर्चा करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पे, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे गन्ना फसल की देखभाल किस तरह करें, और साथ में जानकारी लेंगे मोटे अनाज वर्ष में मोटे अनाज के रूप में बाजरे का उत्पादन और उसके मूल्य संवर्धन पे। और अब करवाओ भैया का मनोरंजन, सुनायो लोकगीत। ये सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करते, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा। ये सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करते, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा। ये सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करते, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा। भगत ने यार पर में तेरा नाम रटा, भगत ने यार पर में तेरा नाम रटा। तेरा लाख वफते उन सर पायोटी पर परंत नहीं हटा, बचा था कर तेरे पदे कहती, सब उसकी यार से कटा जब धरना को सका एक सारा नक्शा झरा। सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करके, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा। बड़ी सभा में नगर करते वो पापी हत्यारे, बड़ी सभा नगर करते वो पापी हत्यारे। चीर बढ़ा के लिहाज लाख दीवा कर दिए नहारे नहारे वहारे, तार तार के चीर उसका ना होया नगर शरीर वादी, कृष्ण की तस्वीर पर वो दिखा ना खया। ये सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करते, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा। ये सच्चे करतार तेरी महिमा परम पार करते, सबकी नैया पार चाहे छोटा हो बड़ा।
वह लागी देव दोहाई रपाई विष के तेरी शान हंस हंस करेगी विष का पाल सारा जग हो गया हैरान उसके सरप ना लया सच्चे दरबार तेरी मैं माया प्रमाण करके सब दुनिया पार जाए छोटा हो बड़ा सच्चे दरबार तेरी मैं माया प्रमाण करके सब दुनिया पार जाए छोटा हो बड़ा प्रभु जुग जुग में तन बिगड़े काम समारे एक नंदा नाई वो सज्जन कसाई वह हाथी तलकयो बाहर पुकारे जिनमें से तेरा ख्याल वैठे आपो चितत काल उनने कर दो माला माल जो तेरी शरण में पया सच्चे दरबार तेरी मैं माया प्रमाण करके सब दुनिया पार जाए छोटा हो बड़ा सच्चे दरबार तेरी मैं माया प्रमाण करके सब दुनिया पार जाए छोटा हो बड़ा। और ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत और गायक कलाकार थे सुनील दुजानिया। और भाइयों किसान भाई किसी भी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित समस्या हो या पशुधन से संबंधित समस्या हो या मौसम की जानकारी लेनी हो तो इन सब की जानकारी किसान भाई किसी भी समय पर किसान कॉल सेंटर पर फ़ोन करके जानकारी ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और भाइयों ये बात करें बीज बैंक की तो बीज बैंक के है तो बीज बैंक भाइयों एक ऐसी सुविधा है जिसमें हम अपनी भावी पीढ़ी खातर जो आनुवांशिक रूप से शुद्ध और जो अच्छे बीज हैं उनका हम भंडारण करें हैं। और आमतौर पर जिस तरह बाढ़ है या कोई बम विस्फोट हो जाए या कोई किसी तरह की जो विकर्ण है उनसे ये प्रभावित नहीं होता। जो अलग अलग विधि के जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनकी प्रजातियों के जो बीज हैं इसमें उनको संग्रहित या इकट्ठा करा जावा है। और बीजों को आमतौर पर भाइयों नियंत्रित जलवायु में कम आर्द्रता और ठंडे तापमान में इकट्ठा किया जावा है। और ये बीज जो है एक लंबे समय तक जो है सुरक्षित और संरक्षित रहे हैं और इस चीज़ की गारंटी दी जाए कि बाद में भी ये आसानी से बड़े होंगे। और बीज बैंक की भाई हमने जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम बीजन इकट्ठा कर रहे हैं? क्योंकि भोजन उगान का जो पहला सब तय चरण है वो बीज से शुरुआत हुआ है। और जो हमारी धरती है उस पर लगातार हो रही जलवायु परिवर्तन है, प्रदूषण है, कीट है, बीमारी है, इन सब का खतरा लगातार बना रहा है जिससे कि बीजों के ऊपर भी जो है इन सब का संकट है। और इसीलिए भाइयों बीज बैंक जो है इस संकट के समय में खेती में लचीलापन बनाए रखने खातिर एक ऐसी संस्थान है जो बीजों ने इकट्ठा करके उनको संरक्षित करे है। क्योंकि अनुमान यो है कि पूरे विश्व में लगभग 40% जो पौधों की प्रजातियां हैं या तो वो विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। तो ऐसे में जो दुर्लभ पौधे हैं या जो विरासत है हमारी, या जो स्वदेशी पौधे हैं, जंगली पौधे हैं या जो स्थानीय पौधे हैं, उन सब को बचा कर रखना है। और ये सभी जो विलुप्त होने के कगार में हैं, उन विलुप्त होने वाले सभी जो खाद्य प्रणाली के जो बीज हैं उनको हमने सुरक्षित रखना है। यही जो है उद्देश्य है बीज बैंक का। और भाइयों चलते चलते जानकारी ले हुए प्राकृतिक खेती संजीवक खाद बनाने की विधि पर। भाइयों संजीवक खाद जो है एक प्राकृतिक खाद है और
जो हमारी फसल है उसमें हम उसने सीधे रूप में दे सके हैं और फसल को जो है उसकी उचित बढ़ोतरीकरण में भी और उसने रोगों मुक्तकरण भी ये मदद करे है। संजीवक खाद बनाने खातर भाई हमने सामग्री चाहिए 100 लीटर और 100 लीटर खातर भाई हमने 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गाय का मूत्र और 500 ग्राम इसमें गुड़ और 66 लीटर लेना है पानी। तो इस तरह हम 100 लीटर का एक जो संजीवक खाद का घोल तैयार कर सके हैं। और भाई इसकी बनाने की विधि है कि एक ड्राम में हमने 30 किलोग्राम गाय का गोबर लेना है, उसमें 3 लीटर गाय का मूत्र मिलाना है, 500 ग्राम इसमें हमने गुड़ मिलाना है और इन्हें फिर अच्छी तरह से तीनों ने मिला लें। और मिलाने के बाद भाइयों इसमें जो है 66 लीटर पानी हम इसमें डाल दें और एक घोल तैयार करें और इसने भाई फिर कपड़े तक ढक दें और 10 से 12 दिन के बाद तक जो है इसने ढक कर रखें और 10 से 12 दिन के बाद भाइयों इसने हम लकड़ी तय हिला के इस्तेमाल कर सके हैं। और प्रयोग किस तरह करना है, 1 एकड़ जमीन में भाइयों 200 लीटर मात्रा में हमने 2 से 3 बार इस्तेमाल करनी है और सिंचाई जो है पानी के साथ साथ या मिट्टी के साथ मिलाकर भी हम इसने दे सके हैं। ये तो बात करी भाइयों संजीवक खाद के बारे में। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और भाइयों इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।